बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब निकाह हमारा जो मामूल है उसी के मुताबिक हम लोग पढ़ेंगे। पहले सबक की रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसकी तर्जुमानी करेंगे, उसके बाद उसकी शरह की तरफ आएंगे और सवालात जो है शरह के आखिर में होंगे। कोई भी एक सबक जब खत्म हो जाएगा तो उसके सवाल उस सबक से मुतालिक सवालात कर सकते हैं। अगर फसल है तो फसल के खत्म होने के बाद सवालात कर सकते हैं। बहरहाल उसके इन पर उसके उसके जो है इख्तिताम पर किताब निकाह। अन्निकाहु मिन सुननिल मुरसलीन वहुव अफदलु मिन अत्तखल्ली मिन्हु लिनफ्लिल इबादति لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل وقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها ولا يختب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يفتن إليها ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا يفوتيني بنفسي وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ويقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء किताब निकाह निकाह की किताब अन्निकाहु मिन सुननिल मुरसलीन निकाह रसूलों की सुन्नतों में से है। निकाह रसूलों की सुन्नतों में से है। वह अफजलु मिन तखल्ली मिन्हु लिनफिल इबादत और वो अफजल है नफिल इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार या गोशा नशीनी इख्तियार करने से। वो अफजल है नफिल इबादत के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करने से या तन्हाई नफिल इबादत की तन्हाई से। वह अफजलु और वो अफजल है मिनत तखल्ली मिनहु उसको छोड़कर यानी उससे हटकर गोशा नशीनी इख्तियार करने से। किसके लिए? नफिल इबादत नफिल इबादत के लिए। लिअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्द अला उस्मान इब्न मज़ऊन अत्तबत्तुल इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरदीद की। तबत्तुल यानी निकाह न करने के सिलसिले में। निकाह न करने के सिलसिले में अ, जो इंसान तन्हा रहता है निकाह नहीं करता उस सिलसिले में। वक़ाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब अय नौजवानों की जमाअत मन इस्तता मिनकुमुल बाअता जो तुम में से निकाह की ताकत रखता हो फलयतज़व्वज उसे चाहिए कि निकाह करे। फ़इन्नहु अगद्दु लिलबसरी इसलिए कि वो निगाहों के लिए निगाहों को नीचे करने के लिए बहुत अच्छा है।
وہ نگاہوں کو بہت زیادہ نیچے رکھتا ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ، وہ بہت زیادہ نیچے رکھنے والا ہے، للبصر نگاہوں کو، وہ احسن اور بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، للفرج شرمگاہ کی، ومن لم يستطع اور جو طاقت نہ رکھتا ہو، فعلیہ بالصوم تو وہ روزے رکھ لے، فإنه له وجاء اس لیے کہ وہ اس کے لیے ڈھال کے مانند ہے، ومن اراد خطبۃ امرأۃ اور جو کسی عورت کے پاس نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کرے، اور جو کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کرے، فلہ النظر منہا تو اس کے لیے اجازت ہے اس کی طرف دیکھنے کی، الی ما یظہر عادتاً ان چیزوں کو جو عادتاً ظاہر رہتے ہیں، کوجہہا جیسا کہ اس کا چہرہ، وکفیہا اور اس کی ہتھیلیاں، وقدمیہا اور اس کے پیر، ومن اراد خطبۃ امرأۃ اور جو کسی عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کرے یا کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے، فلہ النظر منہا تو اسے اس عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت ہے، دیکھنے کی گنجائش ہوگی، الا ما یظہر عادتاً ان چیزوں کی طرف جو عادتاً ظاہر رہتے ہیں، عام طور پر ظاہر رہتے ہیں، توجہہ وکفیہ وقدمیہ جیسے کہ اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں اور اس کے قدم، ولا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ اور کوئی آدمی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے، اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام کے بعد اپنا نکاح کا پیغام نہ بھیجے، الا اللہ یسکن الیہ مگر یہ کہ اس معاملے میں اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہ ہوا ہو، مگر یہ کہ اس معاملے میں اس کے بارے میں فیصلہ نہ ہوا ہو، ولا يجوز التصریح بخطبۃ معتدۃ اور کسی عدت میں گزارنے والی عورت کے نکاح کے پیغام میں کسی عدت کے دن گزارنے والی، معتدہ وہ عورت جو عدت کے ایام گزار رہی ہو، جو عدت میں ہو، اور کیسی عورت کے پیغام میں جو عدت گزار رہی ہو، صراحت کے ساتھ پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدت گزارنے والی عورت کو صراحت کے ساتھ نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، ولا یجوز التصریح اور صراحت جائز نہیں ہے، صراحت کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیا چیز؟ بخطبۃ نکاح کا پیغام دینا، معتدۃ کس کو؟ عدت گزارنے والی عورت کو، ویجوز التعریض اور اشارہ کنایا بخطبۃ البائنی وہ عورت جو کہ ویجوز التعریض بخطبۃ البائنی خاصۃ وہ عورت جس کو طلاق بائن دی گئی ہو اس کے نکاح کے پیغام میں اشارہ دے سکتے ہیں، کو وہ جو عدت گزار رہی ہے، طلاق بائن ہو چکی ہے اس کی، یعنی مکمل طور پر شوہر سے جدا ہو چکی ہے، لیکن ابھی عدت میں ہے، تو طلاق بائن کی صورت میں وہ عورت جو کہ عدت گزار رہی ہے اس کے پیغام میں اشارتاً پیغام دینا جائز ہے، وہ یجوز التعریض اور اشارے میں پیغام دینا جائز ہے، وہ یجوز التعریض بخطبۃ البائن خاصۃ اور وہ عورت جو بائن یعنی ہمیشہ کی جدائی، شوہر سے ہمیشہ کی جدائی جس کو ہم طلاق بائن کہتے ہیں، اس عدت میں ہو تو اس کے نکاح کے پیغام میں تعریض جائز ہے خاص طور پر، فیقول پس وہ کہے جیسے لا تفوتینی بنفسی کی تم اپنے آپ کو مجھ سے الگ نہ کرو، یعنی تم اپنے آپ کو مجھے اپنے آپ سے محروم مت کرو، وَأَنَا فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ میں تم جیسی عورت میں دلچسپی لینے والا ہوں، دلچسپی لیتا ہوں، یا مجھے تم جیسی عورت ہی کی ضرورت ہے، وَنَحْوُ ذَلِكَ اس طرح کی باتیں جس کو ہم تعریف کہتے ہیں، ولا ينعقد النکاح الا بایجاب من الولی اور نکاح منعقد نہیں ہوتا مگر ولی کی جانب سے ایجاب کے ذریعے، او نائب ہی یا اس کے نائب کی طرف سے، ولی یا اس کے نائب کی جانب سے ایجاب کے ذریعے، فیقول پس وہ کہے انکحتک او زوجتک میں نے تمہارے نکاح میں دیا
या मैंने तुम्हारा निकाह किया। ये इसकी तरफ से, किसकी तरफ से? लड़की के वली या उसके नायब की तरफ से, जो कहेगा कि मैंने तुम्हारे निकाह में दिया या तुम्हारी अक़द में दिया फला औरत को, जिनका वो नाम लेगा। लेकिन अल्फाज ईजाब के इतने ही हैं। अल्फाज ईजाब की अनकाहतुका और ज़व्वजतुका है। बाकी जो अल्फाज होते हैं वो उसकी सराहत के लिए है, फला फला औरत वगैरह जो भी आता है वो मजीद तफसीलात हैं। वरना ईजाब जिसको कहते हैं वो सिर्फ अनकाहतुका और ज़व्वजतुका इन अल्फाज के जरिए होता है। वो कबूल मिन ज़ौजी, निकाह मुनक़िद नहीं होता मगर वली या उसके नायब की तरफ ईजाब के जरिए, या फिर कबूल। दूसरी चीज क्या है? कबूल मिन ज़ौजी, जौज की, शौहर की जानिब से कबूल के जरिए। और नाइबी ही, या उसके नाइब की तरफ से, शौहर और अगर वो ना हो तो उसके नाइब की तरफ से कबूल के जरिए। फ़यक़ूलु, बस वो कहे काबिल तू और तज़व्वजतु, वो कहे कि हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने निकाह कर लिया। ये कबूल के अल्फाज हैं। ईजाब के अल्फाज है अनकाहतुका और ज़व्वजतुका, और कबूल के अल्फाज हैं क़बिलतु और तज़व्वजतु। वो युस्तहब्बु अन यख्तुबा, देखिए ऊपर हम लोग इसको पढ़ रहे थे, खुतबा खितबा पढ़ रहे थे। अब यहाँ हम लोग खुतबा पढ़ेंगे, बेखुतबत इब्न मसूद पढ़ेंगे। वो युस्तहब्बु अन यख्तुबा क़ब्ल अल अक़दी बेखुतबती इब्न मसूद। वहाँ खितबा से मुराद निकाह का पैगाम था, यहाँ खुतबे से मुराद वो तकरीर है, खिताब है, जो हम लोग पढ़ते हैं आमतौर पर। तो वो युस्तहब्बु अन यख्तुबा क़ब्ल अल अक़दी, और मुस्तहब है कि वो अक़द से पहले खुतबा दे। बेखुतबत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबे, खुतबा। अल्लाह बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तशहुद फिल हाजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजत के मौके पर हमें तशहुद सिखाया है। कौन सा तशहुद? ये जो आगे आ रहा है, इन्नल हम्दलिल्लाह, तमाम तारीफें यकीनन अल्लाह ही के लिए हैं। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं। व नस्तईनुहु, और उसी से मदद तलब करते हैं। व नस्तगफिरुहु, और उसी से मगफिरत तलब करते हैं। व नतूबु इलैहि, और उसी की तरफ रुजू करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, और हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं हमारे नफ्सों के शर से। व मिन सय्यिआति अमालिना, और हमारी आमाल की बुराई से। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। व मन युद्लिल फला हादिय लह, और जिसको वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। व यक़रा सलासा आयातिन, और ये 3 आयतें पढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान रहो। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। वो खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उससे उसका जोड़ा बनाया, उसका जोड़ा पैदा किया। वो बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और इन दोनों के जरिए बहुत से मर्दों और औरतों को फैला दिया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही, और अल्लाह ताला से डरो जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। वल अरहाम, और रिश्तों के बारे में अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। वक़ूलु क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त दुरुस्त बात कहो, भली बात कहो, अच्छी बात कहो, सही बात कहो। युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। व मन युतिअल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करे, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने अजीम कामयाबी हासिल कर ली। अजीम कामयाबी उसने हासिल कर ली। व युस्तहब्बु ऐलानुन निकाही, और निकाह का ऐलान मुस्तहब है। व दरबी अलैहि बिदुफ़्फ़ी, और दुफ दुफ पर मारना, लिन निसाई, औरतों के लिए। ऐलान का निकाह और दुफ का इस्तेमाल अ, औरतों के लिए, ये जो है मुस्तहब है निकाह में। यहाँ ये बाब खत्म होता है जो निकाह के बाब की तमहीदी बातों पर है।
तमहीदी इब्तिदाई नौयत की जो बातें हैं उस पर मुश्तमिल ये बाब है, और यहाँ ये बाब खत्म होता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि शरह जो है एक हल्के में हम लोग खत्म करें। किताब निकाह इबारत हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी तर्जुमानी भी कर चुके हैं। अब हमको उसकी शरह करना है। किताब निकाह, हम लोग इससे पहले ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि किताब मुख्तलिफ अबवाब और मुख्तलिफ फसूल और मुख्तलिफ मसाइल का मजमुआ होती है। उसमें बहुत से अबवाब होते हैं उस मौजू से मुताल्लिक़। तो सारे अबवाब पर फसूल पर जो मुश्तमिल होती है, फसूल तो अबवाब के ताबे होते हैं। मुख्तलिफ निकाह के जो मसाइल हैं, बाब की शक्ल में जो अलग अलग बाब होते हैं, जैसे निकाह के तहत जो भी अबवाब होते हैं, उन तमाम अबवाब के मजमूए को किताब कहते हैं। निकाह के माने क्या हैं? निकाह के लग़वी माने हैं अलजम्उ वज़्ज़म। अलजम्उ वज़्ज़म, दाद से, साद दाद से ज़म, जमा करना, मिलाना। अलजम्उ वज़्ज़म, वज़्ज़म्मु, किसी चीज को जम कर देना हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़ाद से है। उर्दू में चूंकि तलफ़्फ़ुज़ का उतना एतबार, उतना मखारिज का उतना ख्याल न रखते, इसलिए हम लोग ये जम कर देना बोलते हैं। लेकिन अरबी में जाहिर है कि वो दम है, ज़ाद से है। जमा करना और मिलाना, उसी से शेख ज्वाद कह रहे हैं, हाँ दौद कह रहे बिल्कुल, हैं? साद ज़ाद, जी हाँ। जी। उसी से तनाकहतिल अशजारु कहते हैं। तनाकहतिल अशजारु, दरख्तों ने निकाह किया। मतलब क्या है? जम्मा बाजुहा इला बादिन, बाद दरख्त बाद से मिल गए हैं, यानी दरख्त बिल्कुल घने हो गए, एक दूसरे से मिल गए हैं। जब दरख्त एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो कहते हैं तनाकहतिल अशजारु। निकाह का इतलाक लुगत में अक्द पर भी होता है, अक्द निकाह पर भी होता है, और जिमा पर भी होता है। कहाँ वो लफ्ज निकाह अक्द के बारे में इस्तेमाल हुआ है और कहाँ वो लफ्ज जिमा के बारे में इस्तेमाल हुआ है, वो इबारत से हम लोग समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहे नकाह फलानुन फलानत फलानतन, कि फला शख्स ने फला औरत से निकाह किया, तो जाहिर है कि यहाँ ये अक्द के माने में होगा। नकाह फलानुन फलानतन, अगर कोई कहे कि फला ने फला से अक्द किया है, तो निकाह किया है, तो वो अक्द के माने में होगा। अगर कोई शख्स ये कहे कि नकाह फलानुन इम्राअतहु, फला ने अपनी औरत से निकाह किया, अब जाहिर है कि वहां तो अख्त के माने में नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जा रहा है कि अपनी बीवी, न कहा फलानुन इम्राअता हो, फला ने अपनी बीवी से निकाह किया। तो अब वो है उसकी बीवी, तो वहां तो वो अख्त के माने में इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो किस माने में होगा? जिमा के माने में होगा। तो ये लफ्ज, इस लफ्ज का इतलाक अक्द पर भी होता है, यानी अक्द निकाह पर भी होता है, और फिर जिमा पर भी होता है। किस जगह पर किस माने में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो उसके इस्तेमाल की हालत से मालूम होता है, वो उसकी इबारत से पता चल जाता है। शरीयत में निकाह किसको कहते हैं? शरई माने क्या है? ये तो निकाह के लफ्जी माने थे, शरई माने क्या है? तका तआकुदुन, तआकुद, एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। तआकुदुन बैन रजुलिन व इम्राअतिन युक़सदु बिही इस्तिमताउ कुल्लु मिन्हा बिल आखिरी व तकवीनु उसरतिन सालिहतिन व मुज्तमइन सलीमिन। मैं इसको लिखकर इंशाल्लाह ग्रुप में भेज देता हूँ, उसके लघवी माने और उसके शरई माने ग्रुप में भेज देता हूँ। आप लोग फिर उसको अपने पास नकल कर ले सकते हो इंशाल्लाह। पहले ही भेजना था लेकिन बात मेरे जहन में नहीं रही, तो मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह इसके लघवी माने और इसके शरई माने भेज देता हूँ। तो शरई माने क्या है? तआकुदुन बैन रजुलिन व इम्राअतिन, एक आदमी और औरत के दरमियान अक्द, यानी एग्रीमेंट। युक्सदु बिहा इस्तिमताउ कुल्लु मिन्हा बिल आखर, जिससे मकसूद ये होता है कि उनमें से एक दूसरे से इस्तिमता कर सके, फायदा उठा सके, लुत्फ ले सके। वो तकवीन उसरतिन सालिहतिन, और एक सालेह खानदान की बुनियाद रखे। वो मुज्तमइन सलीमिन, एक सलीम, सलीम यानी एक दुरुस्त मुआशरे, या फिर एक दुरुस्त सोसाइटी को तश्कील दे। एक
مرد اور عورت کے درمیان ایگریمنٹ، ایک مرد اور عورت کے درمیان عقد، جس سے مقصود یہ ہے کہ ان میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے اور ایک صالح خاندان اور سلیم یعنی اچھی اچھی سوسائٹی کی تشکیل دے. یہ نکاح کے شرعی معنی ہیں. النکاح من سنن المرسلین، نکاح رسولوں کی سنتوں میں سے ہے. نکاح رسولوں کی سنتوں میں سے ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان کے لیے ہم نے بیویاں اور اولاد بنائی تھی، یعنی ان کی بیویاں تھی، اولاد تھے. ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے جن کی بیوی تھی اور اولاد تھی. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ نکاح رسولوں کی سنتوں میں سے ہے. نکاح رسولوں کی سنتوں میں سے ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کتاب و سنت میں مشروع ہے، یعنی اس کی مشروعیت ثابت ہے، شریعت میں وہ ثابت ہے. اس سلسلے میں سب سے بنیادی آیت تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ آیت اس سیاق میں نازل ہوئی، اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ کچھ لوگوں کے زیر تربیت یا پھر زیر نگرانی یا ان کی زیر ولایت کچھ یتیم اور لڑکیاں تھیں، اور پھر انہیں یہ ڈر تھا کہ ان یتیم لڑکیوں سے اگر وہ نکاح کریں گے تو اگر کسی وجہ سے انصاف نہیں کر سکیں گے تو بہت بڑا گناہ تھا. تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے جو زیر ولایت یتیم لڑکیاں ہیں ان سے نکاح کرنے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، کیونکہ تم ان کے نگران بھی ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرو، تم ان کو چھوڑ دو، ان سے نکاح مت کرو، بلکہ تمہیں جو پسند آئے، جو تمہیں درست لگے عورتوں میں سے ان سے نکاح کرو، 2 3 4. اس کے بعد اللہ نے کوئی اور عدد نہیں بتایا، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو ہے ایک ہی ہے. اگر انصاف کرنے کی انسان کے پاس طاقت ہے انصاف کرنے کی، اور اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ انصاف کر سکے گا، تو ایسی صورت میں وہ ایک سے زائد کر سکتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکے گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا پھر تمہاری لونڈیوں سے تم تعلق قائم کر لو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ افضل ہے اس بات سے کہ تم انصاف نہ کر سکو یا پھر کسی طرف مائل ہو جاؤ. یہ تو کتاب سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. حدیث سے جو مشروعیت ہے وہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک حدیث ذکر کرے، یا معاشر الشباب، اس سے اس کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی، خاص طور پر نوجوانوں کو، کیونکہ اصل انہیں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح اجماع سے بھی ثابت ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی میں ذکر کرتے ہیں اجماع المسلمون علی ان النکاح مشروع، مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ نکاح مشروع ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں جب کوئی بات آتی اس کے بعد اس کا جو فہم ہے اس پر، اس سے جو بات معلوم ہوئی اس کو فہم بولتے ہیں. تو اس فہم پر امت نے اجماع کر لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کتاب سنت اور اجماع یہ تینوں سے ثابت ہے. وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي مِنْهُ لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ، اور یہ افضل ہے اس سے کنارہ کش ہو کر نفل عبادت کرنے کے مقابلے میں. نکاح کو چھوڑ کر نفل عبادت میں مشغول ہونے سے افضل ہے. کیا چیز افضل ہے؟ یہ نکاح افضل ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد علی عثمان بن مظعون التبتل، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تردید کی کس سلسلے میں؟ تبتل، تجرد کی زندگی میں، نکاح کے بغیر زندگی گزارنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی تردید کی کہ انہوں نے جب یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ نکاح ہی نہیں کریں گے
निकाह ही नहीं करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरदीद की, और फिर आपने बताया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक से डरने वाला हूँ। लेकिन मैं रातों को नमाज पढ़ता भी हूँ, सोता भी हूँ, और फिर मैं रोजे रखता भी हूँ, नफिल रोजे, और छोड़ता भी हूँ, और फिर मैंने निकाह भी किए हैं। और ये तो एक दलील ये होगी, और दूसरी दलील ये भी है कि साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उस्मान इब्न मसऊद ने ये चाहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब की थी कि वो तजर्रुद की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत नहीं दी। तो एक आम दलील भी है और एक खास दलील भी है। आम दलील जिसमें उस्मान इब्न मज़ून के साथ दूसरे कुछ सहाबा भी हैं, और एक खास दलील भी है जो खुद उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया और उनको इजाजत नहीं दी। तो तजर्रुद की जिंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। तो इससे बात मालूम होती है कि नफली इबादत के लिए मशगूल होने के मुकाबले में तबत्तुल किसको कहते हैं? तबत्तुल कहते हैं इबाद निकाह को छोड़कर, निकाह को नजरअंदाज करते हुए या निकाह किए बगैर नफली इबादत में मशगूल हो जाना, ये तबत्तुल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। वकाला, और कहा, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, जो तुम में से निकाह की ताकत रखता हो। निकाह की ताकत से मुराद कौन सी ताकत है? शौहर बीवी के ताल्लुकात की ताकत है, और फिर ये माली नफके की ताकत है। क्योंकि निकाह में शायद जाहिर है कि मर्द पर नफका होगा, महर का नफका होगा, और फिर जो है एक तो महर देना पड़ेगा, और दूसरे फिर खाने पीने के अखराजात हैं जिसको नफका नानो नफका कहते हैं। तो जो तुम में निकाह की ताकत रखता हो फलियतज़व्वज, उसे चाहिए कि निकाह करे। फ़इन्नहु अगद्दु लिलबसरी, इसलिए कि वो नजर को बहुत ज्यादा नीचे रखने वाला है। वो अहसनु लिलफर्जी, और शर्मगाह की बहुत ज्यादा हिफाजत करने वाला है निकाह। उसकी वजह से इंसान इंसान फिर दूसरों की तरफ देखने से बहुत हद तक महफूज हो जाता है, और उसके साथ उसके हिफाजत भी हो जाती है, बुराइयों से उसकी हिफाजत हो जाती है। वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, और जो ताकत न रखे उसे चाहिए कि रोजे रखे। फइन्नहु लहु विजाउन, इसलिए कि रोजा ढाल है। रोजा ढाल जाहिरी हैसियत से भी है, क्योंकि रोजे से शहवत कम होती है, ये मादी हैसियत से है। और रूहानी हैसियत से भी है, क्योंकि आदमी रोजा रखता है तो हालत रोजा में जब किसी अजनबी औरत के पास से वो गुजरेगा तो अपने रोजे की हिफाजत की नीयत से जाहिर है कि वो अ, अपने आप को शहवानी चीजों से दूर रखेगा। ये तो निकाह की बात हुई। अब ये बात है कि निकाह का हुक्म क्या है। अब इस हदीस से जो हमको मालूम होता है कि क्या इसका मतलब ये है कि निकाह वाजिब है। तो तमाम चीजों को जमा करने के बाद अहले इल्म कहते हैं कि निकाह वाजिब भी हो सकता है, मुस्तहब भी हो सकता है, मुबाह भी हो सकता है। बाज हालात में वो वाजिब है या बाज अशखास के लिए वाजिब है, और बाज हालात में मुस्तहब है और बाज हालात में मुबाह है। जो शख्स निकाह करने की ताकत रखता हो और उसको जिना में मुब्तला होने का अंदेशा हो, और उसके पास शहवत का जज्बा हो, जिस शख्स के पास निकाह करने की ताकत हो, और फिर उसके अंदर शहवत हो, तो उसके लिए निकाह मुस्तहब है। उसके लिए निकाह मुस्तहब है। नहीं, पहली हालत क्या है? वाजिब की हालत है। पहली हालत वाजिब की हालत है। जिस शख्स के पास निकाह की ताकत हो और जिना में मुब्तला होने का अंदेशा हो तो उसको चाहिए कि निकाह करे, क्योंकि ये उसके लिए वाजिब है। दूसरी हालत क्या है कि किसी शख्स के पास शहवत के जज्बात तो हैं लेकिन जिना में मुब्तला होने का अंदेशा नहीं है। ऐसी सूरत में निकाह उसके लिए मुस्तहब है। और तीसरा वो शख्स है जिसके पास शहवत नहीं है, उसके लिए निकाह मुबाह है। जैसा कि बड़ी उम्र का शख्स है, जिसके पास शहवत तो होती है लेकिन वो उसमें उतने ज्यादा खतरात नहीं होते कि वो गुनाह कर बैठेगा, तो उस आदमी के लिए मुबाह है। तो निकाह का हम एक हुक्म नहीं बता सकते। आम जो हालत है वो ये कि सुन्नत है। निकाह आम हालात में हम यही कहेंगे कि मुस्तहब है, सुन्नत है। लेकिन बाज अशखास के लिए वो वाजिब भी हो सकता है, और बाज अशखास के लिए वो
मुबाह भी हो सकता है। हम मुख्तलिफ हालात के एतबार से उसके बारे में हम कह सकते हैं। वमन अरादा खितबतम रातिन, ये खितबा है खा खा के कसरे के साथ, और खुतबा है खा के जम्मे के साथ। खुतबा खा के जम्मे के साथ वो कलिमात हैं जो खतीब कहते हैं। खतीब जो कलिमात कहते हैं, जो तकरीर करते हैं, उसको खुतबा कहते हैं। और खितबा खा के कसरे के साथ ये पैगाम को कहते हैं, जो निकाह का पैगाम भेजा जाता है उसको खितबा कहते हैं। वमन अरादा खितबतम रातिन फलहु नजरु मिनहा इला मा यजहरु आदतन, जो किसी औरत के पास निकाह का पैगाम का इरादा करे, जो किसी औरत से निकाह करना चाहे, और जो किसी औरत के पास निकाह के पैगाम भेजने का इरादा करे, तो उसके लिए इस बात की इजाजत है कि वो उसकी तरफ को देख ले उन चीजों को जो जाहिर, आमतौर पर जाहिर रहती हैं, आदतन आमतौर पर जाहिर रहती हैं। क्या है? कवजहिहा, जैसे कि उसका चेहरा है, वो कफ़ैहा, उसकी हथेलियां हैं, वो कदमैहा, और उसके कदम है, उसी तरह उसका सर है, और उसी तरह उसकी गर्दन है, क्योंकि जीनत के मकाम है जहाँ वो हार पहनती है। तो इस हिस्से को वो देख सकता है। ये वो हिस्से हैं जिनको वो देख सकता है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दी है। और खास तौर पर इस वजह से कि उसके देखने के बाद बहुत मुमकिन है कि उसके वो जो निकाह करना चाह रहा है उसके लिए मजीद ख्वाहिश पैदा हो जाए, और इस तरह उसका जो निकाह है वो मजबूत हो जाए। तो इस बात की गुंजाइश है कि वो देख ले। लेकिन इस सिलसिले में कुछ मसाइल हैं, उसको अपने सामने रखना जरूरी है। इस सिलसिले में जो देखने की इजाजत है वो जाहिर है कि पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज सहाबा को ये कहा था कि वो देख ले। जैसा कि एक हदीस में आता है कि एक सहाबी आपके पास आए और कहा कि मैं अंसार की एक औरत से निकाह करना चाहता हूं। तो आपने पूछा कि क्या तुमने उसको देख लिया? उन्होंने कहा कि नहीं। तो आपने कहा फजहब फंजुर इलैहा फ़इन नफी आयुनिल अंसारी शैअन, कि जाओ देख लो, इसलिए कि अंसार की आंखों में कुछ खास बीमारी होती है। हो सकता है कोई खास किस्म की चीज हो जो उनकी आंखों में होती हो, उस वक्त होती थी। तो इस वजह से आपने उनको देखने का कहा। लेकिन ये उसके साथ खास नहीं है, क्योंकि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, इज़ा खतब अहदुकुम मरअता फ़इन इस्तता अन यंजुर इला मा यदउहु इला निकाहिहा फलयफ़अल, कि जब तुम में से कोई किसी औरत के पास निकाह का पैगाम भेजना चाहे, तो अगर उसके लिए मुमकिन है कि उसे देख ले, ऐसी चीज की तरफ जो उसे निकाह की दावत दे, तो उसे चाहिए कि देख ले। तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने एक औरत के पास निकाह का पैगाम भेजना चाहा, तो मैं छुपकर ठहरा रहता था, यहाँ तक कि मैंने उसे देख लिया। और उसने उसकी वजह से उसके निकाह की तरफ मेरा मैलान हो गया, और मैंने उसके पास निकाह का पैगाम भेजा और फिर निकाह कर लिया। तो ये हदीस है। इसके अलावा और भी हदीस है जिसे देखने के लिए कहा गया। लेकिन जाहिर है कि इस सिलसिले में कुछ अहकाम, कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि ये देखने की जो बात है वो तन्हाई में नहीं होगी। देखने के लिए ये भी जायज है कि आदमी छुपे तौर पर देख ले। ये भी जायज है कि आदमी लड़की वालों से कहे कि हम देखना चाहते हैं। और ये भी उसके लिए मुनासिब है कि वो बराह रास्त देखने के बजाय अपने घर की जो औरतें हैं, जैसे उसकी वालिदा हो गई या बहन हो गई, उनको देखने के लिए कहे, फिर वो देख कर आकर इसको उसके औसाफ बता दें। इसकी भी गुंजाइश है। लेकिन बराह रास्त वो देखना चाहे तो उसकी भी गुंजाइश है। लेकिन देखना दूसरों के साथ सामने होगा, दूसरे लोग मौजूद रहेंगे, तन्हाई में नहीं होगा। इस्लाम में इसी हद तक इजाजत है कि वो देख ले, लेकिन उसके बाद उनका तन्हाई में जाना, उनका बातें करना, उनका हंसी मजाक करना, उनका फिर बाहर निकलना, या फिर उनका किसी भी तरह का ताल्लुकात कायम करना, जो मगरबी ममालिक वगैरह में एक फैशन हो चुका है, ये इस्लाम के अलावा है, इस्लाम से हटकर है। इस्लाम ने सिर्फ देखने की इजाजत दी। बाकी इससे हटकर जो भी काम होते हैं, जो इस बुनियाद पर होते हैं
या फिर इस बहाने होते हैं या फिर इस हीले की वजह से होते हैं कि इस तरह हम एक दूसरे की आदत और अतवार से वाकिफ हो सकेंगे, जिनके साथ हमको जिंदगी निभाना है। हमको मालूम होना चाहिए कि उनके अखलाक क्या हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनके फलां क्या हैं, उनके फलां क्या हैं। ये शैतानी वसवसे हैं, शैतानी वसवसे हैं जो इंसान की जबान पर जारी होते हैं और फिर उस तरह उनके लिए बुराई के रास्ते खुल जाते हैं। तो देखने की जो इजाजत है उसके दायरे को इस कदर वसी कर देना, ये इस्लाम के खिलाफ है। इस बात का हमें जहन में रखना चाहिए। वला यख्तुबु रजुलु अला खिदबति अखीही इल्ला अल्ला युस्कना इलैहि, इल्ला अल्ला युस्कना इलैहि। और किसी शख्स को अपने भाई के निकाह के पैगाम पर निकाह का पैगाम भेजना जायज नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने उनके बारे में कोई फैसला ना किया हो। अ, किसी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम हर उस चीज को जो मुसलमानों के दरमियान आपस में बग़्ज़ पैदा करती हो, नफरत पैदा करती हो, कीना पैदा करती हो, इख्तलाफ पैदा करती हो, उन चीजों से इस्लाम ने मना किया है। अब किसी शख्स ने किसी लड़की के घर पर निकाह का पैगाम भेजा है, अब उसी वक्त पर कोई दूसरा शख्स भी अपना निकाह का पैगाम भेज दे, तो जाहिर है कि जिस पहले शख्स ने उसके पास निकाह का पैगाम भेजा है उसको तकलीफ होगी, उसके दिल में उसके खिलाफ नफरत पैदा होगी, इख्तलाफ होगा। तो इससे मना किया गया कि किसी शख्स ने किसी के पास निकाह का पैगाम भेजा है तो उसके बाद फिर दूसरा शख्स उसके पास निकाह का पैगाम न भेजे। अलबत्ता दो हालतों में वो भेज सकता है, दो हालतों में भेज सकता है। पहली हालत ये कि जो पहले जिस शख्स ने निकाह का पैगाम भेजा है उसके पैगाम को उन्होंने इनकार कर दिया, लड़की वालों ने उसके पैगाम को कबूल नहीं किया, बता दिया कि हम लड़की नहीं देंगे। तो इस सूरत में ये दूसरा शख्स फिर उनके घर पर निकाह का पैगाम भेज सकता है। दूसरी हालत क्या है? दूसरी हालत यह है कि जिस शख्स ने निकाह का पैगाम भेजा है वो खुद इस बात की इजाजत दे, वो खुद इस बात की इजाजत दे कि आप भी चाहें तो निकाह का पैगाम भेज दीजिए। तो उस सूरत में वो अपने निकाह का पैगाम भी उनके पास भेज सकता है और वो दोनों रिश्तों को ध्यान में रखकर, सामने रखकर जिस रिश्ते को चाहे मुंतखब कर सकते हैं। एक तीसरी हालत भी है, और तीसरी हालत ये है कि किसी दूसरे शख्स ने निकाह का पैगाम भेजा लेकिन उसे मालूम नहीं था कि पहले शख्स ने उसके पास पैगाम भेजा हुआ है, यानी इल्म नहीं है। एक उसको बगैर इल्म के कि किसी और शख्स का निकाह का पैगाम उनके पास गया हुआ है, कोई उनके पास निकाह का पैगाम भेज दे, तो उस सूरत में चूंकि वो इल्म नहीं रखता इसलिए वो माजूर होगा, वो माजूर होगा। हो सकता है यही वो हालत हो इसमें कि फातिमा बिनत खैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया कि मेरे पास मुआविया बिन अबू सुफियान, अबू जहम और उसामा के निकाह के पैगाम आए हैं। तो जाहिर है कि तीन पैगाम उनके पास पहुंच चुके थे। अब ये तीन पैगाम, जबकि एक पैगाम के बाद दूसरे पैगाम नहीं भेजना चाहिए, तो या तो ये कि उनको इल्म नहीं था, इल्म नहीं था इसलिए उन्होंने उनके पास निकाह के पैगाम भेजे थे। ये एक बात हो गई। या फिर वो हालत होगी जिसका मौलिफ ने इसके बाद जिक्र किया है, मैं इंशाल्लाह उसका जिक्र इसके बाद करूंगा। तो बहरहाल उन्होंने मशवरा किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मुआविया बिन अबू सुफियान तो मुफलिस हैं, उनके पास माल नहीं है। अबू जहम लाठी अपने हाथ से नहीं रोकते, नहीं निकालते, हमेशा उनके पास लाठी होती है, लेकिन तुम उसामा से निकाह कर लो। एक और हालत जिसका मौलिफ रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है वो ये कि इल्ला ये कि उन लोगों ने उसके बारे में कोई फैसला ना किया हो, उन्होंने कहा है कि इंतजार कीजिए, हम आपके बारे में सोच कर बताते हैं। तो ये वक्त उन्होंने लिया हुआ है। तो ऐसी हालत में मौलिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि इस सूरत में ये दूसरा शख्स निकाह का पैगाम भेज सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये जो हालत है वो इस बात से टकराती है कि निकाह के पैगाम के बाद निकाह के पैगाम भेजने ही के माने में हुआ ये भी, क्योंकि उन्होंने जब वक्त लिया है फैसला करने के लिए तो उनको उस वक्त तो मिलेगा उनको, उस वक्त तक तो इंतजार करना चाहिए। मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना कि इल्ला ये कि उन्होंने उसके बारे में फैसला करने को वो फैसला करने के लिए वो जो है अभी उनके बारे में कोई फैसला ना किया हो, या फिर फैसला करने के लिए अभी वो गौर व फिक्र कर रहे हों, तो ऐसी हालत में दूसरा शख्स भी उसके पास निकाह का पैगाम भेज सकता है। तो जाहिर है कि ये वो हालत नहीं है जिसमें उसकी इजाजत हो, जिसमें उसकी इजाजत हो। इल्ला ये कि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इसे मालूम हो चुका हो कि उन लोगों ने इस निकाह को कबूल न करने का फैसला किया है। इल्ला ये कि
अभी उन्होंने नहीं बताया है, यानी उन लोगों ने फैसला तो कर लिया है कि यानी इस शख्स के पैगाम को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है अभी बताया ना हो। ये बात अगर उसे मालूम हुई है तो ऐसी सूरत में वो चीज जायज हो सकती। बहरहाल बुनियादी तौर पर ये कि असलन तो ये जायज नहीं है, इल्ला ये कि उनका जवाब जो है मिल जाए पहले फरीक को, तो फिर दूसरा फरीक जो है निकाह का पैगाम भेज सकता है, या फिर पहला फरीक इजाजत दे तो फिर वो भी निकाह का पैगाम भेज सकता है। वला यजूज़ु तस्रीहु बिखितबतिन बिखितबती मुअतद्दतिन, इद्दत में रहने वाली या इद्दत गुजारने वाली औरत के निकाह के पैगाम में सराहत के साथ उसे निकाह का पैगाम देना जायज नहीं। इद्दत गुजारने वाली औरत को सराहत के साथ निकाह का पैगाम देना जायज नहीं है। देखिए, इद्दत दो तरह की है। इद्दत दो तरह की है। एक बाइन और दूसरी गैर बाइन। मुअतद्दा बाइन, मुअतद्दा बाइन वो औरत जो इद्दत गुजार रही हो, औरत बाइन है। मुअतद्दा गैर बाइन, और वो औरत जो कि बाइन नहीं है। यानी इद्दत की दो किस्में हो गई। एक पहली किस्म जाका मौलिक रहमतुल्लाह अलैह आगे जिक्र कर रहे हैं। वो मोतद्दा यानी ऐसी इद्दत गुजारने वाली औरत जिसको तलाक रजई दी गई है। ऐसी इद्दत गुजारने वाली औरत जो गैर बाइन है, यानी जिसको तलाक रजई दी गई है, एक या दो तलाक़ें दी गई है, तो ऐसी सूरत में उसको सराहत के साथ निकाह का पैगाम भेजना भी उसके पास जायज नहीं, और फिर इशारे किनाए में भी निकाह का पैगाम भेजना जायज नहीं है। और दूसरी वो औरत जिसको जो इद्दत मोतद्दा बाइना हो, यानी वो कई सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि उसको तीन तलाक़ें दे दी गई, उसके बाद वो इद्दत गुजार रही है। और दूसरी ये कि उसके शौहर का इंतकाल हुआ है और उसके बाद वो इद्दत गुजार रही है। तीसरी ये कि निकाह के बाद मालूम हुआ कि ये रज़ाई भाई बहन है, रज़ाई भाई बहन है। उसके बाद में फस्ख होगा निकाह, क्योंकि जाहिर है कि जब मालूम होगा कि निकाह तो भाई बहन है तो उनके पास निकाह फस्ख हो जाएगा उनका। तो उसके बाद वो इद्दत गुजार रही है। ये क्या है? ये मोतद्दा बाइना है, ये मोतद्दा बाइन है। तो इसमें तफरी जायज नहीं, लेकिन तारीज जायज है। तारीज क्या कहते, किसे कहते हैं? इशारे किनारे को। मोतद्दा गैर बाइन में तफरी भी जायज नहीं, तारीज भी जायज नहीं। यानी सराहत के साथ निकाह का पैगाम देना भी जायज नहीं, इशारे किनारे में देना भी जायज नहीं। लेकिन मुअतद्दा बाइन के लिए तफरी जायज नहीं, लेकिन तारीज जायज है। सराहत के साथ निकाह का पैगाम नहीं भेज सकते क्योंकि अभी वो इद्दत में है, लेकिन उसको इशारे किनारे में कह सकते हैं। फ़यक़ूलु व यजूज़ु तारीज़ु बिखितबतिल बाइन खासतन, और जो बाइन हो, जिसे हमेशा के लिए अपने शौहर से जुदाई हो चुकी हो, खास तौर पर उसके निकाह के लिए तारीद इशारे किनारे के जरिए निकाह का पैगाम देना जायज है। फ़यक़ूलु, वो कहे, ला तफूतूनी बिनफ्सी की, आ, आ, तो तुमको जो है मैं खोना नहीं चाहता। वाना फी मिस्ली की लरागिबुन, तुम जैसी में मुझे बहुत रगबत है। वो नहwu ज़ालिका, इस तरह की बातें इशारे किनारे में कह सकता है। मुझे आप जैसी ही किसी लड़की की तलाश थी या औरत की तलाश थी, इस तरह की चीजें। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो आधा सबक ही हो सका, उसके बाद का जो सबक है इंशाल्लाह आइंदा की क्लास में करेंगे। वला यनक़िदु निकाहु इल्ला बिइजाबिन, यहाँ से पढ़ना है हम लोग इंशाल्लाह। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।